how did that foundation education shape your professional discipline and most important the personality? Before that, before the schooling, I would like to just add something Yes. that when I was after school, we had a 6 month break and I wanted to earn some money. Industry is a very vast industry. And शुरू में जब लोग आते थे हमारे टाइम पे अभी भी वो सोचते हैं जी ये तो बहुत मजे का काम है ग्लैमरस वर्ड यूज करते थे कोई ग्लैमर नहीं है ग्लैमर इज नॉट फॉर अस देखिए सिचुएशंस बहुत होती हैं आई हैव बीन थ्रू न्यूमरस सिचुएशंस वेयर आई हैव टू हैंडल इट या किसी और को के थ्रू भी हैंडल कर सकता हूँ लेकिन दो ऐसे इंसिडेंट मेरे को याद हैं जिसमें कोई नहीं कर सकता था मैं ही कर सकता था आई वुड से फॉर होटेलियर्स चाहे आप फ्रंट ऑफिस के हो या F&B के हो या हाउस कीपिंग के हो आपका मेन पैशन ये कि गेस्ट को मैंने कुछ करना है अलग से सो बेसिकली टू बी रिमेम्बर्ड एज एन ऑनेस्ट सिंसियर होटेलियर विद अ सिंपल क्लीन हार्ट एंड आई एम लाइक वाटर you can put me in any glass bottle and I'll take that shape and I feel I'm very crystal clear and I'm very sincere and passionate about what I do. If you had to summarize your entire journey in one sentence, what would it be? That's a tough one. I would say an innings of fun, enlightenment, that is, you gain knowledge, lot of learning, lot of unlearning, growth, and satisfaction. Welcome to Yogi Ram Podcast. Today on Yogi Ram Podcast, we are joined by a veteran of the India hospitality industry, Mr. Vijay Vanchuji, with a career spanning over 40 years. Vijayji is an alumnus of St. Columbus School and IHM Usha. From starting as a chef training at the Oberoi in 1979, leading iconic institutes like the Imperial and ITC hotels as general manager and senior vice president. His journey is a master class in leadership. A recipient of Lifetime Achievement Award 2018 and Hotelier of the Year 2021, he has now transitioned into the world of writing, sharing his decades of wisdom through his latest book. Please welcome the legendary hotelier and author, Mr. Vijay Vanchuji. Sir, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है and thank you for your precious time. Thank you. It's my pleasure to be here. Sir, आज का पॉडकास्ट चालू करते हैं with the early life education से. You completed your schooling from St. Columba 1975 में and St. Columbus, yes, in Delhi near the Golda Khana. It's one of the oldest schools of Delhi. I passed out in 1975. And management from IHM Pusa 1979. So Yes. how did that foundation education shape your professional discipline and most important the personality? Before that, before the schooling, I would like to just add something Yes. that when I was after school, we had a 6 month break and I wanted to earn some money. And उन दिनों एक मूवी रिलीज हुई थी बॉबी फेमस Okay. ऋषि कपूर मूवी तो उसमें एक बाइक चलाते हैं बॉबी और नीतू सिंह जो हैं वो बाइक पे जाते हैं सॉरी डिम्पल कपाडिया नॉट नीतू सिंह सो दे गो ऑन अ बाइक एंड वी हैड दिस डिजायर ऑल ऑफ अस टू बाय दैट बाइक तो वो 3,500 रुपए की बाइक थी ना उन दिनों में 3,500 तो नहीं हमारे पास इट्स लाइक वर्थ लैक्स सो आई told my dad I want to make some money get me a summer job Great. तो he says क्या मिलेगा तेरे को समर जॉब कर लोगे तो he got me into hotels much before my hotel management as a trainee in a government hotel Great. और मेरी जो तनख्वाह थी वो 120 रुपए थी अच्छा. ये 1976 की बात कर रहा हूँ मैं मार्च अप्रैल में सो आई जॉइंड अशोका होटल एज अ इंडस्ट्रियल ट्रेनी अप्रेंटिस ट्रेनी तो वो टाइम था व्हेन 120 रुपए आप 4 साल काम करेंगे तब जाके 3-4 हजार रुपए आपके बचेंगे सो आई नेवर काइंड ऑफ लाइक द होटल इंडस्ट्री एंड आई फाउंड इट आई एम अ मिसफिट सो वो एक टाइम था देन बट द लर्निंग्स केम फ्रॉम देयर कि भाई आपको वहां पे हाथ से काम करना है यू हैव टू वर्क लिटरली लाइक अ लेबर इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ योर करियर so it didn't agree with me because I've come from St. Columbus, fine school, senior Cambridge background. हमारी ट्रेनिंग ग्रूमिंग बहुत अच्छी थी सो व्हाट वी रियली लर्न फ्रॉम द स्कूलिंग बिट एंड दिस एक्सपीरियंस वाज अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी ग्रूमिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड इन द इंडस्ट्री सो स्कूल से हमें ये चीजें मिली डिसिप्लिन डेफिनेटली वी वर वेरी they were very strict and
you have to be in the best of your uniforms, you can't be in dirty shoes. And timing, punctuality, अगर आप 5 मिनट लेट हुए तो you have to really be, punished. And that helped me a lot in my career, definitely. Great, great, great. Sir, you talked about your father. So your grandfather and father served in prestigious department like railway and atomic energy. So how did their dedication to public service influence your approach into hospitality? वो सर कैसे इन्फ्लुएंस हुआ और फिर कैसे ये ट्रांसफॉर्म हुआ? बेसिकली देखिए, उनका जो नौकरी रही है वो गवर्नमेंट में रही है. माय ग्रैंडफादर वाज द रेलवेज, ब्रिटिश गवर्नमेंट. वो समर कैपिटल शिमला होता था, 6 महीने वो वहां रहते थे. और फादर ने 1950 में दिल्ली आ गए, 51 में वो भी शिमला में थे. He was with the Department of Labor, Ministry of Labor. So, if you talk about their influence on me, overall, I think I found them one of my role models, my father and my grandfather. Again, extremely, careful in grooming and the turnout, But what I saw from them, my grandfather and father both, जो भी घर में गेस्ट आते थे, उनकी जो खिदमत होती थी, the word we talk about अतिथि देवो today, खिदमत एक उर्दू का word है. The service, the care of small little things, they would do. My father especially, because I was too small when my grandfather had already retired. So, but when I saw my father, his way of calling guests, there were guests always in our house, हमेशा हर हफ्ते रोज कोई ना कोई गेस्ट आते थे. तो सारा टाइम यही होता था. And we used to see how he would greet them and एक उर्दू का वर्ड होता है तकल्लुफ, so how he would look after them and खिदमत करी जाती थी. So I learned that a lot from them. I think that and that really helped me in the hospitality in the future. Great, sir. सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा, बहुत कॉमन एंड इम्पोर्टेंट वन. शेफ की जब मैं बात करूं, होटल्स लाइन की जब मैं बात करूं, यू स्टार्टेड एज ए शेफ ट्रेनी एट द ओबेरॉय इन 1979. हाउ डिड द culinary background help you later in understanding large scale operation as a जनरल मैनेजर? क्योंकि होता है ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना एंड गेटिंग इनटू मैनेजर लेवल, वीपी, उस लेवल तक पहुंचना, वो मेहनत, वो डेडिकेशन, वो यात्रा. सर इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताएं. देखिए, जस्ट टू टेल यू लिटिल स्टेप बैक वन स्टेप. जब मैंने कॉलेज खत्म किया तो 4 महीने के लिए मेरे पास नौकरी नहीं थी. और 3 ईयर होटल मैनेजमेंट करने के बाद भी मेरे को स्टूअर्ड की नौकरी मिल रही थी. नाउ before doing hotel management, I was a steward, trainee, whatever. After doing hotel management, again, I'm going to be a steward. So that was something I didn't accept at all. Right. I waited for 3 months, 4 months. I was trust in God, destiny. चांस की बात थी कि ओबरॉय से मेरे को फिर कॉल आई कि एक पोजीशन खाली है किचन ट्रेनिंग के लिए, शेफ ट्रेनिंग के लिए. तो मैंने वो ले लिया. और मेरे को शेफ नहीं बनना था. मेरे को एक्चुअली होटल में भी नहीं आना था. That is why we'll come to the book part, how that book came around and the title. But I joined Oberoi as a kitchen trainee. 2 साल हमने बहुत हमारे टफ गए. मतलब 8 बजे शिफ्ट होती थी तो 5 बजे खत्म होती थी. ये नहीं था कि 5 बजे आपको छुट्टी मिल जाएगी. आपको शेफ बोलेगा आप वापस आ जाओ जी, 8 बजे फिर से आ जाओ. तो हम करते थे ये, और बड़े भारी काम होते थे. उन दोनों इंडस्ट्री बहुत फर्क थी, बहुत चीजें डिफरेंट थी. सो जो किचन का बैकग्राउंड रहा, उसके बाद 3 इयर्स के बाद मेरे को एज एन इंस्ट्रक्टर रखा गया ओबरॉय स्कूल होटल मैनेजमेंट में. उसी स्कूल में आई बिकेम एन इंस्ट्रक्टर. आप देखिए, अगर पढ़ाना है किसी को आपने, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए ना. तो हमें क्या नॉलेज होगी, 2 साल में क्या सीख लेता है. बट फिर मैंने जो नॉलेज अपनी क्लास से पहले मैं 3-3 घंटे प्रिपेयर करता था अपने आप को. और 22-21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में आई एम टीचिंग पीपल हु आर ऑलमोस्ट माय बैच, माय ट्रेनिंग, माय लेवल. सो वो बहुत खींचते थे. हम उनके साथ क्रिकेट भी खेलते थे, उनके साथ मार्केट जाते थे, घूमते थे, मूवीज देखते थे. पर क्लासरूम में आई वाज देयर बॉस. सो दे वर सपोज्ड टू कॉल मी सर, So I used to teach them cuisine, practical and theory, both. Oh, great. Then after that I was in hotel operations as a chef. तो उसका बहुत फर्क पड़ा मेरे को करियर में, because from sous chef I became an assistant F&B manager in a different organization. तो
डेफिनेटली मेरे को शुरू में जब मैं ऑपरेशंस में आया किचन सर्विस में मेरे को मुश्किल आती थी। Okay. भाई आपने बैंकुटिंग करना है, बैंकुट इज अ मेजर एरिया। सो वो सब मैंने उसको सीखा और इम्प्लीमेंट किया। सो पीपल न्यू कि भाई ये किचन से आया, ये खाने के मामले में हम इससे कुछ नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते इसको। Right. एंड दैट हेल्प मी, बट आई लॉस्ट आउट व्हेन इट केम टू सेटिंग अप अ बैंक्वेट हॉल विद, उन दिनों फ्रिलिंग होती थी टेबलों पे, अब तो रेडीमेड मिलता है। तो वो सब सीखा मैंने। मैं किचन बैंक्वेट में खड़ा होता था रात को, जब चले जाते थे सब, तो मैं टेबल को खोल के, फ्रिल को खोल के फिर से लगाता था कि भाई ये चीज आनी चाहिए मुझे, और मैं सीखा उससे। सो आई लर्न दैट, बट द किचन पार्ट हेल्प मी इन द फ्यूचर व्हेन आई बिकेम एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर विद इंपीरियल, व्हेन आई बिकेम अ जीएम विद आईटीसी होटल्स, when I became a vice president. All this helped me because I have opened about 20 restaurants in my career. Okay, I've handled banquet situations, which we can talk as we go on, where I got stuck in a scenario where only I could handle that. I'm talking about much later in my career. I handled it. वो सब confidence आता है when your knowledge is fairly decent. Right. And it helped me to open restaurants. It helped me to execute menus. It helped me to do a lot of new things, new ideas in food and beverage, which I learned and I also imparted to other people. So it really helped me. Kitchen was, I would say, gave me a big, strong background in hospitality. सर इसी से कनेक्टेड मैं सवाल पूछना चाहूंगा। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टीचिंग एट द ओबरा स्कूल एंड व्हाट वाज द मोस्ट क्रिटिकल ट्रेट you aim to develop in your student back then? Oh, well, again, you're talking about the qualities that we need to teach to people, right? Right. देखिए, इंडस्ट्री इज अ वेरी वास्ट इंडस्ट्री, एंड शुरू में जब लोग आते थे हमारे टाइम पे, अभी भी वो सोचते हैं जी ये तो बहुत मजे का काम है, ग्लैमरस वर्ड यूज करते थे। कोई ग्लैमर नहीं है, ग्लैमर इज नॉट फॉर अस। ओके, हम जब शुरू में थे, मेरे को याद है ओबरॉय में जब मैं ट्रेनी था, तो एक मूवी थी सिलसिला, अमिताभ बच्चन और रेखा की, वो शूटिंग चल रही थी। तो मेरे को वो बात करेंगे इसके बाद लेटर ऑन इन आवर इंटरव्यू। मूवी से क्या ताल्लुक रहा, मेरे को क्या शौक था, सबका ही होता है। तो मैं जाके चुपके से वो देख रहा था शूटिंग, तो मेरे को सिक्योरिटी ने बाहर फेंक दिया। व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर। सो वो चीजें हमें बड़ी अट्रैक्ट करती थी। सो आपका जो क्वेश्चन है कि क्या सिखाया लोगों को या क्या क्वालिटीज हैं, यही है कि अपने लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए आप घड़ी छोड़ के आ जाओ घर पे, डोंट वेयर योर वॉच टू वर्क, बिकॉज दैट्स व्हाट वी वर टॉट। सो 16-18 घंटे हम करते थे, तो हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। अगर आप कहेंगे हमने इसको यार विद इन 5 years आई विल बिकम अ जनरल मैनेजर, आई एम सॉरी, बन जाओगे तो आप कुछ सीखोगे नहीं, बड़ी जल्दी गिर जाओगे। Right. Very true. So I used to tell them to learn the basics. Don't ignore the basics. Learn A, B, C, D, E till Z till you're very sure. Today people don't know many things which I in fact in interviews ask them questions. जो बड़े-बड़े शेफ्स भी आते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, लोगों के पास जवाब नहीं होता। Because उनको किसी ने सिखाया नहीं आज की डेट में, और शॉर्टकट्स बड़े आ गए, रेडीमेड चीजें किचन में बड़ी आ गई। तो ये सब मैं उनको बोलता था कि यार तुम ये मत भूलो कि एक आपने सूप बनाना है तो उसका बेसिक मेथड क्या है, कि आपने तैयारी क्या करनी है। हम एक फ्रेंच में यूज वर्ड करते हैं mise en place, which means प्री प्रिपरेशन ऑफ योर इंग्रेडिएंट्स बिफोर यू स्टार्ट अ डिश। वो आपको रेडी रखना है आपका। अगर आपका रेडी नहीं होगा, आपका 4 आइटम रखती है, 2 आपने नहीं किए, तो आप लास्ट में भागोगे। राइट, सो very important to learn the basics and ensure that you forget your personal life. It's a fact, you have to forget it. Holi, Diwali, Christmas, Eid, आप राखी, आप घर पे, आप बड़ा मुश्किल है आपको, अगर टाइम मिल जाए तो मिल जाए। Right, like I have so many stories to tell, but yeah, that's what I feel is very important to share with new people. Great. So getting back to very specific era, 90, 96, 99 and 2019, 22, you have the unique distinction of working with Imperial twice. So what was so special about this institute that motivate you to return for a second tenure? और सर second tenure कैसा और अच्छा रहा, क्या क्या चीजें you have developed, मैं ये बोलूंगा, और आपने उसको implement किया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो second tenure जो रहता है वो बहुत सारे implementation पे रहता है, practicality पे रहता है, और that really gives a chance फॉर द मेजर इंस्टीट्यूट की बात करूं, ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है, इम्प्रोवाइज होता है।
तो सर इसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, आई बिलीव अ लॉट इन डेस्टिनी। आई एम अ फर्म बिलीवर के लॉट ऑफ थिंग्स आर रिटन फॉर योर योर लाइफ, योर ग्रोथ, पर्सनल, प्रोफेशनल। 96 में मैंने इंपीरियल ज्वाइन किया था। उससे 1.5 साल पहले मैं बता दूं कि मैं एक जॉब छोड़ के बिजनेस में चला गया था, अपने बिजनेस में। वो चल नहीं पाया और अनफॉर्चुनेटली वो बिजनेस की बात है। हम वी आर नॉट बिजनेसमैन, यू नो, आई मीन हम लोग सर्विस वाले हैं, तो वो नहीं हो पाया। तो फिर मैंने एक अपॉर्चुनिटी मिली एज एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर इंपीरियल में, दैट इज सेकंड इन कमांड। सो जैसे ही मेरे को ये मिला और उन्होंने बताया कि हम एक नया रेस्टोरेंट शुरू कर रहे हैं, वो उसमें आपके जैसे आदमी की जरूरत है जो अब किचन की नॉलेज भी है और सब कुछ। तो मैंने उस टाइम पे जो 3-3.5 साल किए, मैं आपको बताऊं कि सबसे इंटरेस्टिंग मेरा टाइम था, टफ टाइम था बहुत। मेरे को क्या बताऊं कि सीखना तो था ही, लेकिन ट्रैवल बहुत किया मैंने फॉरेन कंट्रीज में, थाईलैंड में, टू पिक अप यू नो नॉलेज अबाउट द कुजीन दैट वी हैड टू स्टार्ट। और बहुत मेरे लिए एक आई फील वेरी प्राउड कि एक वो जो रेस्टोरेंट मैंने खोला वहां पे, बहुत बढ़िया, आज की डेट में वो टॉप रेस्टोरेंट है वर्ल्ड में। तो ये सबसे बड़ी लर्निंग रही मेरे लिए। और उसके बाद 99 में मैंने छोड़ा, और डेस्टिनी इसलिए कहता हूं क्योंकि 99 में छोड़ा, 2009 में आई वाज बैक, एंड आई वाज बैक इन द नंबर 1 पोजीशन। सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द होटल के भैया आप we have this position, would you be interested? And I took that, you know. So I worked there for 13 years after that. तो 13 और 3 साल, 16.5 साल मैं इंपीरियल में रहा। तो फॉर्मली इट वाज फॉर मी, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ऑल माय एक्सपीरियंस हैव बीन ग्रेट, बट व्हाई डिड आई गो बैक टू इंपीरियल? आपका एक सवाल है। तो एक तो डेस्टिनी मैंने बोला, एक इंपीरियल का जो ऑरा है, यू नो, जो इंपीरियल का रुतबा है, जो स्टैंडर्ड है, द क्वालिटी ऑफ द होटल, द हेरिटेज ऑफ द होटल। सो व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, आई थॉट ये मेरा मौका है कि मैं कुछ करूं डिफरेंट गेस्ट के लिए। देखिए, होटल्स तो होटल्स होते हैं, राइट? एंड आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट अ होटल इज इंपॉर्टेंट, इट विल बिकम वेरी फेवरेट ऑफ पीपल विद द पीपल हु आर सर्विंग। जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो उसमें राइट फिट हो जाता है, काम, उनके एटीट्यूड जो है, उनका जो एप्टीट्यूड है, और मेरे हिसाब से एटीट्यूड ऑफ पीपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसका क्या एटीट्यूड है, क्या नजरिया है, अगर वो उसका एटीट्यूड ठीक है, अच्छा है, उसको काम कम आता है, मैं सिखा सकता हूँ। लेकिन उसको काम बहुत अच्छा आता है और लेकिन उसका एटीट्यूड ही नेगेटिव है, मैं उसको नहीं लूंगा। आई वुड नॉट लाइक टू कीप सच पीपल। सो फिर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इस होटल को अपने हिसाब से चलाऊं और टू ट्राई टू मेक इट अ टॉप होटल, एंड इट वाज ऑलरेडी अ टॉप होटल। उसको और आगे ले जाना है, तो मैंने एक इंडियननेस वहां पे रखी, थोड़ी इंडियन। जो मेरे फॉरेनर्स थे, 80% फॉरेन गेस्ट होते थे, तो उनको मैंने इंडियन फ्लेवर दिया। तो मैं सारे फेस्टिवल्स उनके साथ खुद सेलिब्रेट करता था। 26 जनवरी को मैं फ्लैग होस्टिंग करके स्पीच देता था और हमारी टीम मार्च पास करती थी, और होली के टाइम होली खेलता था मैं। छुट्टी थी, ठीक है ना, घर पे बैठ सकता हूँ और सब अपने स्टाफ को बोल सकता, भाई तुम ये करो और मैं गाइड करूँ घर से। बट मैं ऐसे नहीं करता था, मैं एक्चुअली वहां होता था और गेस्ट के साथ होली खेलता था। अब 50 अगर गेस्ट खेल रहे हैं फॉरेनर्स, वो डरते थे होली खेलते हुए, तो उनको हम व्हाइट कपड़े देते थे, कुर्ता, और ऑर्गेनिक कलर से खेलते थे। आप इमेजिन करिए, और बॉलीवुड के गाने चल रहे हैं, आप इमेजिन करिए उनका कितना। और आजकल तो सोशल मीडिया, फोटो डाला, वीडियो डाला, ये करते थे, तो लोग अपने आप को कहते थे हम तो बहुत लकी हैं कि हम यहाँ पे आज इस टाइम हैं। 15 अगस्त, लोहड़ी सेलिब्रेट करते थे, दिवाली करते थे, क्रिसमस करते थे, डांडिया करते थे। आप मानेंगे दशहरा में डांडिया करते थे। Very good, great. So all these things I would do along with the guests. So this is what I feel proud that I did it. And besides that, many other things, staff activities बहुत करी मैंने। मैं क्रिकेटर हूँ, तो मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता था। मैंने इंटर होटल क्रिकेट टूर्नामेंट्स 2 जीते हुए हैं इंपीरियल के साथ। Very good. As a captain of the Imperial cricket team. Great. And also we have been 3 times runners up. तो मतलब 13 साल में 5 कप्स हैं हमारे पास। तो वो देखिए, मैं क्यों खेलता था, बिकॉज आई लव क्रिकेट। अगर मैं फुटबॉलर होता तो मैं फुटबॉल टीम बना लेता,
Right. तो बट क्रिकेट वॉज माई पैशन। और इमेजिन आप खेल रहे हैं 12-13 लोग और मेरे टीम में एक्स्ट्राज मिला के, और एक स्टुअर्ड है, एक कुक है, एक हाउसकीपर का बंदा है, एक बेलडेस्क का बेल बॉय है, और अगर वो खेल रहे हैं, इमेजिन उनके लिए कितनी एक मोटिवेशन चीज है। Very तो true. मैं उनके साथ पार्टिसिपेट करता था, एनुअल डे में मैं उनके साथ डांस और सिंग करता था। Wow. अब आप एज अ वाइस प्रेसिडेंट यू डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू डू दैट, लेट मी Right. टेल यू। Right. Right. 99% नहीं करते हैं। Hmm. तो मैं ये करता था, तो मेरा ये था कि स्टाफ को सारे को लेके चलो सर। Right. और आज भी डेट में मेरे को लोग बोलते हैं, सर आप जो करते थे आप बड़ा, लेकिन ये मेरा तरीका था। सो दैट वाज माय इंपीरियल जर्नी एंड आई रियली फील वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव got that opportunity or those opportunities. Great, 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 sir. Sir, moving forward, so how significant मैं बोलूं was your 7-year tenure 1999 से 2026 तक as an general manager with ITC Hotel as a turning point था वो सर कैरियर का, या वो 7 साल कैसे थे ITC के साथ, सर इसके बारे में प्लीज बताएं। देखिए, like I said, every experience is very good, you know. You make mistakes, you learn something. You drive on the road, you have an accident, you, God forbid, you learn something out of it, right? इससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इंपीरियल के बाद मेरे को एक ऑफर मिली थी, जो केरला में सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ केरला, जो उन दिनों फ्लाइट्स में नहीं जाते थे, 2 नाइट्स बाय ट्रेन जाना पड़ता था। और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था एज ए जनरल मैनेजर ऑफ अ होटल। आप मानेंगे, मेरे बच्चे छोटे थे, ओके, 7 साल, 8 साल, 4 साल। तो मैं वाइफ सेड, देखो आपको जॉब मिल रही है एज ए GM, आप जॉब में संभाल लूंगी। मैंने ओके कर दिया। अब ओके तो कर दिया, बट ध्यान आया कि बाद में यार अगर इनको आना पड़ेगा तो 2 नाइट ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ेगा। आप फ्लाइट्स नहीं, आप 99 में इतना करते थे। नहीं, हाँ, अब देखिए, डेस्टिनी यहाँ पे प्ले करती है रोल। मेरे को ITC से कॉल आई एंड आई वाज कॉल्ड एंड आई गॉट दैट जॉब, एंड यस, आई वाज अ लिटिल सेल्फिश and I refused my earlier offer, which was not professional, but it was my own offer, decision to refuse the offer. I joined ITC because then also I became a general manager. Okay, and that for me was a turning point, surely, because it upgraded me from a second in command to a general manager. Right. And I had the opportunity of opening a hotel in Delhi as general manager in the year 2000. तो मैंने 2000 में एक होटल खोला 220 कमरे का, जो मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। 2.5 साल मैंने वहां काटे, और वो चीजें मैंने वहां भी शुरू कर दी थी। आप होली कह रहे हैं, 26 जनवरी कह रहे हैं, दिवाली कह रहे हैं, क्रिसमस कह रहे हैं, वो सब मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया था वहां पे। बट फर्दर आई गॉट मोर अपॉर्चुनिटीज टू डू दैट, एंड ड्यूरिंग दिस 7 years with ITC, I was also with Fortune Park Hotels, which is the mid-price segment, and I was heading the operations. तो उन दिनों मैंने अराउंड 17-18 होटल खोले। 2 साल 2.5 साल में ट्रैवलिंग बहुत थी, और ऐसी ऐसी जगहें देखी जो आप नॉर्मली आप जाते नहीं। तो आई वाज वेरी वेरी लकी टू ट्रैवल टू वेरियस प्लेसेस ऑल ओवर इंडिया। काठमांडू भी गया, भूटान, श्रीलंका, सिक्किम, वेस्ट में गुजरात, वापी, एंड साउथ में केरला, ऊटी एंड अंडमान बे आइलैंड, अंडमान आइलैंड, निकोबार आइलैंड्स। कहाँ मैंने ट्रैवल नहीं किया है। So that really helped me to learn a lot, see new things, and so those 7 years were very, very, very interesting in my view. Yeah. Sir, इतने डिटेल में आपने बताया, आपकी जर्नी बताई। I would like to jump into some more light, some more interesting leadership recognition की मैं बात कर रहा हूँ। So you received the Inspiring Hotel Leader Award in 2019. In your view, what is the most effective way to motivate a team in a demanding and competitive environment? Plus, वो क्षण, वो पल, वो जब recognition मिलता है अपने को, acknowledgement मिलता है, वो सर वो क्या क्षण था, क्या पल था, and how that increase the responsibility मैं जब बोलूं, और थोड़ा सा एक चीज अपने को लगती है कि now और थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए, और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। सर प्लीज शेयर। it's like I take cricket as an example. सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरीज मारी हैं। अगर वो अगला मैच खेलेगा तो उसमें भी उसको मारनी है ना, वो 100 सेंचुरीज जो गई वो चली गई। Right. You still have to perform, right? Similarly, if I've got an award, it's for my past work or people have noted, but I still have to do better and keep the respect and the honor of that award. अब आप चांस की बात है, आप 2019 की बात है।
आपको याद होगा कोविड-19, Right. उसी के बाद कोविड-19 आया, मैं था और मैंने उसको कैसे संभाला, Mhm. by not running away. I was there to handle the situation along with my team. हमने skeletal team रखी हुई थी, occupancy थोड़ी डाउन होती है उस टाइम, आपको पता ही है, Right. और challenges थे जो नए नए हमारे तरीके थे Never seen. उसको हैंडल करना, यू नो, all the masks and all the methods that we used. तो मैं almost like 2 months I was there with the staff on the ground, living inside, handling this situation. तो staff के साथ काम करना बहुत जरूरी है. You know, they should feel that I am part of their team, not that I am a boss. So Right. I used to actually work along with them for everything. I used to be on the ground floor, on the ground with them, helping them out. कि भाई यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताओ, पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है. उस टाइम बिजनेस थोड़ा डाउन होता है तो सैलरीज का भी थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन एवरीबडी गॉट देयर सैलरीज, एंड बट आई वुड इंश्योर दैट इफ समबडी नीड्स मनी तो अपनी तरफ से थोड़ा दे दिया जेन्युइन लोगों को. Right. So it is very important as a leader to be seen as a leader, less but more as a friend, more as a guide, more as a mentor. Right. I think that's something which I really learned, in a big way. And extracurricular activities are very important all the time. You have to be with them. It's not that, you know, like I said, मैंने कुछ instruction दे दिए कि आप ये करो और मैं घर चला गया, 6 बजे घर चला रहा जी, मेरा टाइम हो गया जाने का. मैं तो रात को 2-2 बजे तक काम करता था, even as a vice president. So I think once you get any recognition, it's even more important for you to, you know, keep on doing better and better for the team. सर इसी कंटेक्स्ट में मैं नेक्स्ट सवाल लेना चाहूंगा. You were named Food and Beverage Manager of the Year 1994. So what major shift you observe in India's F&B sector की जब मैं बात करूं last 3 decades and very specifically जब मैं बात करूं, आपने 2019 की भी बात करी, कोविड के बाद. सो सर इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए. देखिए, F&B में तो ओवर द लास्ट 30-35 years किचन में या सर्विस में बहुत चेंजेस आए हैं. टेक्नोलॉजी इज कम इन अ मेजर वे, और पहले हम चीजें किचन में स्पेशली हाथ से ही करते थे सारा कुछ. अब आधी चीजें रेडीमेड आती हैं. स्मॉल एग्जांपल आई विल से, साउंड्स फनी बट हम फ्रेंच फ्राइज और चिप्स वेफर्स अपने हाथ से बनाते थे. अब आपको सब रेडीमेड मिलता है. राइट. ठीक है, आप बड़ी बड़ी चीजें आप हाथ से करते थे वो अब सब मिल जाता है. इन टर्म्स ऑफ रेस्टोरेंट में बिलिंग में पहले आपके हैंड रिटन चेक्स बनते थे, फिर वो एनसीआर मशीन आई, फिर अब सारा कुछ अब ऑनलाइन हो गया. सो यू नो, थिंग्स हैव बिकम इजियर आल्सो. एट द सेम टाइम आई फील कहीं पे पर्सनलाइजेशन में फर्क पड़ता है इस चीज से. जब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ जाती है तो पीपल डिपेंड मोर ऑन टेक्नोलॉजी. आई थिंक इट्स ओके टू हैव टेक्नोलॉजी, बट दैट पर्सनल ह्यूमन टच हैज टू स्टे. राइट. वेरी ट्रू. वेरी ट्रू. So equipment has changed a lot. Food styling has changed a lot. The way food is presented has changed a lot. जिस तरीके से आज सिंपल एक डिश पहले बनती थी, अब जो इट्स कॉल्ड नोवेल कुजीन, पर नोवेल मींस न्यू. ये चीज शुरू हुई थी 1980s में. ओके. और मैं लंदन गया था 84 में, और उस टाइम बहुत पिकअप हो रही थी नोवेल कुजीन. वो नोवेल मींस इट इज लाइक अ पिक्चर ऑन अ प्लेट, जो आज की डेट में आप जो भी जाता है इंस्टाग्राम पे फोटो लेके डाल देता है. राइट. उस टाइम पे इतना नहीं होता था, ना इंस्टाग्राम था. आज क्योंकि फूड की प्रेजेंटेशन ऐसी हो गई है, वैरायटी ऐसी हो गई है, वो लुक एंड फील चेंज हो गया हर चीज का. राइट. सो आई थिंक ओवरऑल F&B बैंक्वेटिंग में स्पेशली थिंग्स हैव अपग्रेडेड टू अ ह्यूज लेवल. एंड जो चीजें मुश्किल से करी जाती थी पहले, आपको एग्जांपल देता हूँ. हमारे पास एक फॉर्मल सिट डाउन एक टर्म होती है FSD, वेयर यूरोप में, UAE में, मिडिल ईस्ट में बुफे नहीं होते ज्यादा. इट इज ऑल सर्व्ड ऑन द टेबल. ओके. तो अगर 3000 का डिनर है तो 3000 लोगों को टेबल पे सर्विस होती है. हाँ. राइट. सो यू कैन डू दैट विदाउट द बैकअप. राइट. सो उस तरीके से किचन डिजाइन होते हैं, पहले से ही डिजाइन होते हैं कि कन्वेयर बेल्ट सिस्टम होता है, एक लाइन में सब कुछ निकल रहा है. वो पहले इतना होता नहीं था, हमें बनाने पड़ते थे, हमें किचन्स क्रिएट करने पड़ते थे. और अभी भी पुराने होटलों में आपको वो नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आपके अपॉर्चुनिटी आती है, और मैंने करा है, मैंने 400-450 का इंडिया दिल्ली में एक फॉर्मल सिट डाउन डिनर किया है जो मैंने खुद हैंडल किया था. तो दीज थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट इन द इंडस्ट्री, एंड आगे भी और ये बढ़ता रहेगा.
as things are improving, आप किचन में बात करें, robots are cooking food. Right, right. You know, so I don't agree with that. I'm sorry, robot doesn't have a heart. A Right. chef has to cook with a heart, more than his hand and eyes and brain. Right, right. So मैंने देखा है ऑटोमेटिक वो चल रहा है, सब कुछ बन रहा है, पर वो बात नहीं आती है मेरे हिसाब से. ठीक है, परफेक्शन डिश बहुत बढ़िया बनेगी बिकॉज उसमें फॉर्मूला डाला हुआ है, फॉर्मूला डालने से बढ़िया. प्लस जब तक एक आदमी का हाथ नहीं लगेगा, एक बाय हार्ट नहीं बनाएगा, बिकॉज आई एम अ शेफ, आई कुक विद माई हार्ट. Right. If my heart is not involved, that's a basic ingredient of the dish. Right. तो इसलिए And a passion. Right. So I इसलिए think they're हमारे यहाँ not. बोला भी जाता है कि माँ के हाथ की जो वो अलग ही टेस्ट रहती है. आप जी. अपन खिचड़ी क्यों ना खा लें? बिल्कुल. Absolutely. So I think lot of changes have happened in that. You know. सर, मैं अवार्ड्स की फिर से मैं जिक्र करना चाहूंगा. After receiving award like leader of the decade, lifetime achievement award, whom do you give the most credit of your success? Yes, family रहते हैं, friends रहते हैं, guide, mentor रहते हैं, but मोटा मोटा और क्या क्या चीजें थी जिनके वजह से that वो boost up मिला, push up मिला, because जनरल कहा जाता है कि हाँ ठीक है, credit goes to X, Y and Z, but वो when we are down, जिन लोगों ने हेल्प करी उनका क्रेडिट और ज्यादा बढ़ जाता है, फैमिली का क्रेडिट और ज्यादा बढ़ जाता है. सर, इसके बारे में प्लीज बताइए. देखिए, सबसे पहले आई विल say my father was the one who pushed me in the hotels and he understood that this guy can do hotels. Right. नहीं तो मैं तो अगर अच्छा निकल जाता तो इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने वाला था या आर्मी में जाने वाला था. सही, these are my dreams and the secret dream we can talk about later on which I haven't spoken. So yes, so my father was the biggest motivator for me to get into the industry. After that, I would say at different stages of my career, I got people to help me. Mm-hmm. And right from the beginning in 79, then later in 81, then later in so around 2000 and around that time 2008, 7, I got people at different stages of my life. Many people have been there who've taught me and held my hand, but I have 4 people who I really thank, and they were my gurus. Right. And there were 4 of my professional gurus who have helped me, and I think I really owe them a lot. Where, you know, because when you work with somebody, तो आपके ऊपर नीचे चलता रहता है, या कुछ बोल दिया किसी ने, Right. मजा नहीं आया, जवाब दे दिया आपने, या बॉस ने डांट दिया आपको, ऐसे भी हुआ. लेकिन बाद में रियलाइज हुआ ये आदमी सही कर रहा था यार, इससे मेरे को कुछ सीख मिली है. Right. Right. और सो इस तरीके से 4 लोगों ने जो मेरे गुरुज हैं, वो मेरी जो बुक लिखी है, मैंने उसमें उनका जिक्र किया है, उनको एक्नॉलेज किया है, उन्होंने मेरे बारे में लिखा है. एंड दैट इज बीन वन ऑफ माय, यू नो, I would say not a secret to success, but my help in my journey. And above all, I'll thank my family, my wife, my kids, who I have not seen their जो बचपना है, मैं देखा नहीं उनका. मतलब वो मेरी 2 डॉटर्स थी जो हैं, अब तो बड़ी हो गई, उनके डॉटर्स हो गए. वो कब पैदा होने के बाद कब वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए, मेरे को पता नहीं चला. माय वाइफ टोल्ड मी वन डे, चलिए इसको स्कूल में भर्ती करना. मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? शी सेड, डोंट यू नो योर एल्डर डॉटर इज 4 years old. माय गॉड, दैट हिट मी कि मैंने अपनी फैमिली के साथ बहुत कम टाइम लगाया. और मैं ही नहीं, होटेलियर्स जो हैं सारे सब यही चीज कहेंगे कि फैमिली के साथ बहुत कम टाइम लगाते हैं, तो हमें लगाना चाहिए. वी शुड स्पेंड टाइम विद द फैमिली. सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ दैट, ऑल दीज पीपल, माय फादर, माय गुरुज, माय फैमिली एंड द ऑलमाइटी अबव ऑल, हाउ कैन आई थैंक द ऑलमाइटी फॉर गिविंग मी दोज अपॉर्चुनिटीज. Great, sir. सर, आपने जिक्र किया बुक के बारे में, so we will get into the second part जो है journey about as an author. So after the successful career as a hotelier, when and how did the idea of writing a book first come to your mind? वो क्या क्षण थे, वो क्या पल था कि नहीं, अब this जो पूरी तपस्या है, ये पूरा जो है, इसका एक निचोड़ होना चाहिए, that gonna help people. So सर, वो वाक्या, वो इंसिडेंट्स, वो जो वो पुश था, वो सर उसके बारे में प्लीज बताइए. देखिए, मैं कोई सोचा ही नहीं कभी कि बुक लिखूंगा, और जब आइडिया आया मेरे को, डेफिनेटली इस बात को भी करीब काफी टाइम हो गया, मैं 2009-10 की बात कर रहा हूँ जब मैंने सोचा इसके बारे में. अब देखिए इतना टाइम हो गया है. तो अराउंड 2011-12 में मैंने बुक लिखनी शुरू करी. और आप बोलेंगे इतने 12-14 साल लग गए, क्योंकि भैया टाइम कहाँ मिलता था यार इंडस्ट्री में, आप बताइए कहाँ टाइम था.
तो ड्यूरिंग कोविड थोड़ा टाइम मिला, मैंने लिखा। उसके बाद जब मैंने सबैटिकल लिया और पिछले 1.5 साल में, 1.25 साल में मैंने बहुत स्पीड अप किया बुक को, अपनी बुक को, क्योंकि टाइम मिलता था, थोड़ा अपना टाइम होता था, फ्री टाइम होता था। तो मैंने फिर पूरा उसको अपना तरीके से, बिकॉज माई इंग्लिश इज गुड, इंग्लिश इज नॉट द प्रॉब्लम, बट द लैंग्वेज ऑफ द बुक हैज टू बी डिफरेंट। राइट। बट इफ यू आस्क मी व्हाई आई थॉट अबाउट दिस, अब देखिए हमारे टाइम पे जब हमने इंडस्ट्री में शुरू किया था, हम बिल्कुल कोई हमारे पास गाइडेंस नहीं थी। शुरू की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज गेटिंग इनटू कॉलेज। उन दिनों कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई आपको सिखाता था नहीं सिखाता था, आपने सीखना पड़ता था। पर कोई ऐसा नहीं मिला कि कोई गुरु बन गया। एक आदमी मिला मुझे आईटीडीसी में, एक रेस्टोरेंट का कैप्टन था, उसने मेरे को बहुत संभाला, एंड आई वुड लाइक टू थैंक हिम टू, मिस्टर हैमिल्टन नाम था उनका। ही वाज वेरी हेल्पफुल, ही इवन केम टू माय हाउस टू टॉक टू माय फादर। So, that is how you kind of start getting a kind of a help from people. So that's where I thought कि यार कोई guidance नहीं मिली हमें, तो let me write something where I feel will help people who are going to join the industry. तो जो youngsters हैं, जो schools में हैं, college में हैं, वो hotels में आना चाहते हैं, तो basically उनके लिए बहुत अच्छी एक guide है। And I also wanted to chronicle my journey, my struggles, my mistakes, my learnings। मैं वो सब लिखना चाहता था और वो मैंने अपने दिल से लिखा। इसलिए मेरे को एक पैशन था कि लिखूं किताब, और उससे भी सीखा मैंने। I had really learned a lot from there। सर, इसी से कनेक्टेड मैं सवाल पूछना चाहूंगा, आपकी बुक का क्या नाम है? एंड जैसा आपने बताया, मोर ओवर जो मैं अभी समझ पाया हूँ कि इट इज द इनसाइट, इट इज अ गाइड, इट इज अ मेमोर फॉर द फ्यूचर जनरेशन। क्या इसके टिप्स हैं या क्या उनको रखना चाहिए ख्याल में? सो ड्यूरिंग द राइटिंग प्रोसेस, व्हाट न्यू रियलाइजेशन डिड यू हैव अबाउट योरसेल्फ? क्योंकि अपन पूरा वो फ्लैशबैक अपन देखते हैं, क्या चीजें अपने को लिखनी चाहिए, क्या चीजें मोर इफेक्टिवली, जैसा आपने बताया कि लिखना वाज नॉट द इशू, वो उसको कैसे और इजी वे में और मोर इफेक्टिवली टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट अपन किया जा सकता है। सो और योर कैरियर दैट हैज रिमेन अनस्पोकन अल्टिल नाउ, इसको भी आपने मेरे ख्याल से उसमें उतारा होगा। तो सर इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। देखिए, जब इंडस्ट्री में आते हैं ना, और जैसे मैं किसी हॉल में खड़ा हूं, सर्विस कर रहा हूं, तो हमें लगता है कि सारे गेस्ट हमें देख रहे हैं। Right, हाँ, ये फियर होता है, Right. सब में होता है। राइट। तो टिल यू से यार, who the hell am I यार, मेरे को कौन देखेगा, बट फीलिंग ये रहती है। सो एज अ यंग 18-year-old, I felt that biggest fear inside me. Probably that's something which I have not shared much, as you say, unspoken, is a big fear that I had in my, because I was not very confident. एक वो होता ना extrovert, I was more of an introvert. Okay. Till a long टाइम, स्कूलिंग के बाद तक हल्के हल्के कॉन्फिडेंस आ गया। कहाँ से आया पता नहीं, बट ओवर द पीरियड योर लर्निंग इज देयर। एंड हम लोग डरते थे, कॉलेज में रैगिंग हो रही है, उस टाइम रैगिंग होती थी, तो सीनियर से डरते थे। एक दिन सीनियर ने मेरे को बहुत ज्यादा ही पुश कर दिया, तो आई गिव इट बैक टू हिम, एंड देन आई सेड, ओह, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने उसको जवाब दे दिया। वो बड़ा था, सीनियर था मेरे से, फिजिकली वाज ह्यूज, आई वाज वेरी स्किनी एंड थिन। तो देन आई रियलाइज, यार ये तो चुप हो गया, दैट मींस समवेयर यू हैव टू गिव इट बैक। राइट। ये फियर होते हैं, और रियलाइजेशन आती है स्टेज में कि नहीं यार, आई कैन डू इट, तो मेरे को पब्लिक में बोलने से डर लगता था, और अब मैं स्पीचेस देता हूँ, अपने स्टाफ को देता था, 500 आदमी के सामने स्पीच देता था। तो ऐसे करके एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। So I think, but the initial fear आपको अपने आप ही उसको कवर करना है। Right. So talking more about the book, how much did your professional mindset influence writing of your book? जब मैं बात करूं, did a hotelier's sense of perfection reflects in your writing as well? Yes, you see, perfection जो है, एक कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें आप परफेक्शन चाहेंगे। Right. बट ये जरूरी नहीं है कि आपको मिले परफेक्शन। आप करें कुछ और वो बात ही ना आए। एक आर्टिस्ट है, एक पेंटिंग बना रहा है, उसके दिमाग में एक है कि यार ये पेंटिंग ऐसी दिखनी चाहिए एंड में। Right. अगर वो अचीव कर लेता है, उसके लिए बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है। सो दैट परफेक्शन पार्ट आई हैव ट्राइड टू डू इन माय बुक, बट लेट मी टेल यू, आई फेल्ड मेनी टाइम्स इन राइटिंग दिस, बिकॉज क्या होता है, आपने ड्राफ्ट कर लिया, बुक का रेडी हो गया, आप उसको 10 बार ही पढ़ेंगे, आपको 10 गलतियां मिलेंगी।
ये लोगों ने मानी हुई ये चीज. So Right. I had to do and read 20 times. I had to go and relook at my draft till the last stage. Before the printing, I found faults. Okay. I mean, not, I wouldn't say faults, but कि हाँ इसको मैं और better कर सकता था. Right. Right. So I think that is very important that, I had, like I said, I reviewed 15, 20 times. I made some other people also review it. But उन लोगों से भी कोई चीज मिस हो गई जो मैंने देखी. Okay. Could be a fact, could be a repetition in the two chapters of the same thing. Okay. मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया, अगले ही पेज पे रिपीट हो गया. So ये चीजें हैं, ये अपने आप ही आती हैं कि भाई मैं किसी को दे देता, तुम करो यार, मैं आई डोंट नो, आई एम पेइंग यू, यू प्लीज गेट मी द बेस्ट रिजल्ट्स. नहीं, कभी नहीं होएगा, बिकॉज द फीलिंग्स हैव टू कम फ्रॉम मी. Very true. So I think that careful implementation is very important. So I think I tried my best there. It's talking more technical. जब मैं बुक के बारे में बात करूं, which specific target audience do you wish to reach through your book? Yes, in general hoteliers के लिए है, but yes, आज बहुत सारे, मैं जब क्लाउड किचन की भी जब बात करूं, प्रोफेशनल्स, पार्ट टाइम प्रोफेशनल्स भी आ गए हैं. सो वेरी स्पेसिफिकली जब मैं टारगेट ऑडियंस की बात करूं, सो आपकी जो बुक है ये किसको एकदम हिट करती है? देखिए, सबसे पहले ये बताऊं, जो आपने एक अलग क्वेश्चन पॉइंट बोला कि जो क्लाउड किचन्स और बाहर जो इंडस्ट्री के बाहर, होटल इंडस्ट्री के बाहर बहुत डेवलपमेंट हुई है. बहुत डेवलपमेंट हुई है. होटल्स जो हैं, होटल रेस्टोरेंट्स आर गेटिंग चैलेंज. आप देखिए दिल्ली में, गुड़गांव में कितनी जगहें खुल गई हैं, नए नए ब्रांड्स खुल गए हैं. नाम तो मैं, आप देखिए तो 50-100 नाम है जो नए नए कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं. लेकिन वो एक अलग चीज है. बहुत अच्छा है, मेरे को अच्छा लगता है कि नॉन F&B का बंदा एक शेफ बन गया, उसने स्टार बन गया. Right. Just to tell you, I've done cooking on television also. Oh, way great. back in 96 Oh, for 6 months. जब मेरे dear friend संजीव कपूर, खाना खजाना, today is a very good friend, वो भी आए, उसी ने भी शुरू किया था, मैंने भी शुरू किया था. वो कहाँ पहुंच गया देखिए. He got that opportunity, became a star, famous Padma Bhushan. I got into a different stream and I rose up to the level of VPGM. But मेरे को वो याद आते हैं, वो क्षण याद आते हैं कि कैसे हम करते थे. सो जो टारगेट ऑडियंस, ऑब्वियसली लाइक आई सेड, कोई मूवी बनाता है आज की डेट में तो उनको पता है कि किसके लिए बना रहा है. आम जनता के लिए बना रहा है या वो आर्ट फिल्म बना रहा है, वो जो लिमिटेड लोग देखेंगे. Right. मेरा शुरू से डेफिनेटली ये था कि जो 8वीं 10वीं क्लास में बच्चे हैं, जो उन्होंने कभी सोचा होगा कि होटल मैनेजमेंट करना है, या जो ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रहे हैं. देयर आर thousands of catering colleges in India, Right. जो पढ़ रहे हैं और जो ऑलरेडी 5-7 साल 8 साल इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं. तो इट्स अ वेरी बिग सेक्शन. Right. I would say it can be interesting for many other people to read my book who are already seniors in the industry or my friends and my family, and I definitely want them to read my book. और जब मेरी फैमिली पढ़ती है ना, जो ड्राफ्ट में हेल्प करते थे, पढ़ते थे, अरे my son would come and say, अरे dad, I didn't know this aspect about you. There's so many things you write, because जब बुक लिख रहा हूँ तो मेरे को, मेरी मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट होनी है इसके अंदर, क्योंकि आपने कोई चीज लिखी नहीं है. आपने ये नहीं कि 50 इंसिडेंट्स आपने लाइफ के लिखे हुए हैं. हाँ, ये है कि बहुत सारी फोटोग्राफ्स होती हैं आपके एल्बम्स में, होती हैं जो पुरानी फोटोज होती थी, राइट फ्रॉम 84 व्हेन आई वेंट टू लंदन. मेरे पास कुछ इंसिडेंट्स हैं, कुछ जिनसे मैंने सीखा और उसको इम्प्लीमेंट करके लोगों को बताया उसके बारे में कि 84 में मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था और अच्छा हुआ था, उस लड़के ने मेरे साथ क्या किया. आज की डेट में मेरे को आज तक याद है वो चीज 40 साल के बाद. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो द टारगेट ऑडियंस डेफिनेटली इज एनी एंड एवरीवन हु इज इन द इंडस्ट्री, इवन जनरल मैनेजर्स. I love them to read and tell me about it. They may disagree with something, but I'm happy with that. So basically, the target is wide, and I feel definitely not in India. I would like to market this book abroad for hotel schools, and that is where the whole aim was. Very, very genuine answer. So talking more about memories, could you share any interesting ऐसा कोई वाकया from your career that completely changed your perspective or way of thinking? ऐसा कोई जो hit किया, positive, negative? There are many incidents. But I'll take you back to 1976 when I was an apprentice steward. और मैं morning duty कर रहा था एक room service department में, और एक
फ्रेंड आया, कहता है यार एक ऑर्डर आया है एक फिल्म स्टार का, और मैं कमरे में जाने से डरता था। Okay. आई यूज्ड टू बी स्कैर्ड। तो मैंने कहा यार तू चलेगा तो मैं जाऊंगा, मैं अकेले नहीं जा सकता। सो स्टार वाज शत्रुघ्न सिन्हा, द फेमस शॉटगन सिन्हा। तो उनको हमने सर्विस करी, और वो पहला एक मेरा इंट्रोडक्शन था एक बॉलीवुड से, जहां से कुछ स्पार्क्स उड़े और बाद में थोड़ा कल्पनेट हुए। तो एक ये था, एक उसी टाइम में मॉर्निंग शिफ्ट करके घर जा रहा था, तो बैंक्वेट मैनेजर आया, नहीं यू रिपोर्ट टू मी इन द बैंक्वेट हॉल, क्या करना है आपको बता देंगे, आप आ जाओ। मैं पहुंच गया, तो वहां पे क्या है जी, ये पार्टी चल रही है, कॉकटेल पार्टी। इसमें एक वेटर है, उसके हाथ में विस्की ग्लासेस हैं, और आप पीछे उनके जाएंगे, 2 जग लेंगे, पानी और सोडा। तो जिसको वो विस्की देगा, आप पूछिए पानी या सोडा, एंड होल इवनिंग आई एम सर्विंग दैट। तो थक गया हाथ में, दर्द होने लगा। लकी इंसिडेंटली पार्टी चल रही है, मैंने देखा उसमें मेरा क्लास फेलो जो 4 महीने पहले मेरे साथ बेंच पे, एक ही बेंच पे बैठता था, वो गेस्ट था पार्टी में। ओहो। मैंने कहा यार इसने अगर मेरे को देख लिया तो भैया गया, अभी तो इज्जत खत्म हो जाएगी कि वेटर का काम कर रहा है। तो मैंने वो जाग छोड़ भाग गया मैं। तो 2 घंटे बाद में वापस आए, ये सब ढूंढ रहे हैं कहाँ गया लड़का। तब तक वो लड़का चला गया था, मेरा फ्रेंड। गुड गुड। तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि भी फिर मैंने सोचा यार ठीक है, ये तो करना है, बट कमिंग फ्रॉम स्कूल लाइक सेंट कोलंबस बड़ा मुश्किल हो गया एडजस्ट करना, डाइजेस्ट करना उस चीज को। बट वन लर्न फ्रॉम देयर। और एक इंसिडेंट और था, एक मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था अपने कॉलेज में, समर ट्रेनिंग करते थे, तो मैं एक होटल में गया था आउट ऑफ दिल्ली, शिमला में। तो एक इवनिंग शिफ्ट में देखा, एक लड़का था, वो ड्यूटी कर रहा था, पर जो उसका बॉस था उसको सबके सामने डांट रहा था बुरी तरह, बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा था, गाली दे रहा था। मैंने कहा ये तो पागल लड़का है, ये तो जवाब ही नहीं दे रहा। हम होते तो वी वुड नॉट हियर, ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि एक लड़के को ऑलमोस्ट कोई मारने लगा, तो हमने उसको आके बचाया और उसकी पिटाई कर दी थोड़ी, कि भाई कैसे मार रहे हो, फिजिकली यू कांट डू दिस, एंड यंग ब्लड होता है, लड़के होते हैं, गुस्सा करते हैं। तो इसके बाद मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार एक बात बता, तू सबके सामने तेरे को चिल्ला रहा था, तू सुनता रहा चुपचाप। कहता है देखो मेरे गुरु ने बताया कि जब कोई ऐसे चिल्ला रहा है, जो भी रीजन है, सुनते रहो, उसके बाद हो गया थैंक यू सॉरी, और उसको बाकी अलग जाके मिलो, ठंडे दिमाग से मिलो, तो एक फर्क हो जाता है। एंड देन यू हैंडल। सो जब भी कोई चिल्ला रहा होता है, मैंने ये चीज जरूर सीखी है उससे, कि गेस्ट कभी चिल्ला रहा है, आपके कई इंसिडेंट हो सकते हैं, चिल्ला रहा है, सुनते रहो, जस्टिफाई मत करो अपने आप को। देन when he's quietened down, then you kind of talk to him and solve the problem. So these are some learnings. I think anecdotes तो बहुत हैं. We can sit for hours and discuss that. But yeah, some of these things which I would say definitely, it was a learning for me. सर जैसा आपने बताया, यस, होटल इंडस्ट्री में जब मैं बात करूँ, हॉस्पिटलिटी में जब बात करूँ, तो बहुत बार ऐसी टफ सिचुएशंस आती है. So there are moments when everything seems go wrong. So how do you keep yourself calm and focus in such situation? And आप वो क्या टिप्स या गाइड देना चाहेंगे बाकी सबको भी, कि जैसा आपने अभी एक बताया कि यस, ऐसी सिचुएशन में जब सामने वाला अननेसेसरी हाइपर है तो अपन शांत हो जाए. इसके अलावा और क्या क्या टिप्स हैं एंड जो आपने भी इम्प्लीमेंट करी, और आज के बच्चों को या आज के जितने भी हॉस्पिटलिटी से जुड़े हुए हैं फ्रॉम लेवल 0 टू हायर लेवल, क्योंकि जितने हायर लेवल पे जाते हैं प्रॉब्लम, सिचुएशन एंड द क्रिटिकलिटी वो भी बढ़ जाती है. देखिए सिचुएशंस बहुत होती हैं. आई हैव बीन थ्रू न्यूमरस सिचुएशंस वेयर आई हैव टू हैंडल इट, या किसी और को के थ्रू भी हैंडल कर सकता हूँ. लेकिन 2 ऐसे इंसिडेंट मेरे को याद हैं जिसमें कोई नहीं कर सकता था, मैं ही कर सकता था. और चाहे वो फॉल्ट ह्यूमन एरर है या किसी की गलती है, किसी की ओवरसाइट है, मेरे साथ 2 बार ही हो चुका है. और मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर दूं कि हाउ आई हैंडल्ड इट, देन यू विल गेट टू नो क्या करना चाहिए उसमें. एक सिचुएशन ये थी कि जैसे एक हॉल है, वो 2 पार्टी को बुक हो गया एक ही दिन, किसी ने डिफरेंट लोगों ने कर दिया, गलती है, कम्युनिकेशन नहीं हुआ, और उसमें दोनों पार्टीज बहुत हाई लेवल की हैं. एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट है, एक बहुत हाई एंड बिजनेस हाउस है. अब आप उसमें क्या करें, आप जाके मिन्नत कर सकते हैं कि भैया आपको मैं दूसरा हॉल दे देता हूँ. इस केस में कोई नहीं मान रहा था. और किसकी गर्दन थी? मेरी. बिकॉज आई कांट ब्लेम माई स्टाफ, एट द एंड ऑफ द डे आई एम द बॉस. तो मैंने सबसे पहले गया ऑफिस में, मैंने कहा सेक्रेटरी, नो कॉल्स, नथिंग, हाफ एन आवर मेरे को छोड़ दो, मैं बहुत अभी सीरियस सिचुएशन में हूँ, आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड. ये मेरा फोन है, फोन रखो,
आई एम सिटिंग क्वाइटली, मैंने अपने आप को शांत किया, कूल किया अपने आप को। फिर मैंने, ये 3 दिन पहले है, इवेंट से 3 दिन पहले की बात है, तो मैं वो एक पार्टी के घर गया, दे डिसएग्रीड, दूसरे के पास गया, दे डिसएग्रीड। फिर मैंने कॉन्फ्रेंस वाले को फोन किया और फिर मैंने क्या किया कि मैंने टीम को साथ में बिठा लिया। मैंने कहा अब देखो गलती किसी की है, ये मेरी प्रॉब्लम आ गई मेरी टेबल पे, आई विल हैंडल इट, नहीं होगा तो फिर गॉड्स ग्रेस और गॉड्स डिसीजन, यू नो। तो मैंने गेस्ट को, अपने डिपार्टमेंट हेड्स को बिठा के गेस्ट को फोन किया स्पीकर पे रख के, जिसकी कॉन्फ्रेंस थी। मैंने कहा सर आई कैन गिव यू वन मोर ऑप्शन, मना कर दिया उसने, कहता है नहीं, डू यू नो यू लूज दिस अकाउंट, ये वो। मैंने कहा ठीक है सर, बहुत मिन्नतें करी अपना। उसमें सबसे ज्यादा चीज आपको ध्यान रखना है आपकी टोन, जब टू स्टे वेरी पोलाइट, हम्बल, कि भैया हम तो सर आपके नौकर हैं, हमारी गलती हुई है, आई एक्सेप्ट इट, इट इज माई फॉल्ट, आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीबडी, इट इज माई फॉल्ट, इट हैज हैपेंड, प्लीज गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। तो उसने कहा ठीक है बताओ। तो मैंने कहा सर ये ऑप्शन है, मैं करता हूँ। कहता है देखो ये मुश्किल है, मैं तो नहीं मानता, बट मेरे को आप एक दिन का समय दो, आई विल गेट बैक टू यू टुमारो। आप इमेजिन दैट नाइट आई डिडंट स्लीप। वेरी ट्रू। तो वो अगले शाम तक मेरा बुरा हाल था, मैं खाना भी खा रहा, थोड़ा सा खाया या छोड़ दिया। शाम को फिर मीटिंग करी, कहता है ओके नेक्स्ट डे यू शो मी अ सेटअप इन दैट हॉल, बिकॉज वो हॉल जो था वो छोटा था, थोड़ा ये था। किस्मत पे 80 लोगों ने थे, 60 हो गए। अच्छा हो गया, राइट। हमने सेटअप किया, सब कुछ किया। कहता है सेटअप तो ठीक है बट आई विल नॉट अश्योर यू एनीथिंग, गिव मी टाइम टिल टुमारो मॉर्निंग, सो वन मोर नाइट विदाउट स्लीपिंग। Next day in the morning, he came on the line as he promised. He says, "Well, I understand. Okay, we will agree." Great. अब मैंने हैंडल किया, ये कोई और नहीं कर सकता था। ठीक है, नहीं करता, वो मानता तो फिर हम तो फिर अलग बात थी। एक और इंसिडेंट ऐसा था कि मैंने फॉर्मल सिट डाउन की बात करी थी। एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी का एक 400 आदमी का सिट डाउन डिनर, Big one. Formal sit down, that means you have to serve everything on the table. 4 course 5 course menu. तो 3 दिन पहले मेरे को पता चला ये लोग मेन्यू से खुश नहीं है। मैंने कहा तुम पागल हो यार, 3 दिन पड़े हैं, 72 घंटे के पहले तुम बता रहे हो मेन्यू से खुश नहीं है, मैं क्या जादू कर लूंगा। Right. Again, all your experience has to come together in your mind. मैंने सबसे पहले मेन्यू बुलाया, कौन शेफ है उसको बुलाओ। तो वो पता चला जी शेफ ही गलत था जिससे काम हो रहा था। तो मैंने एक और बंदे को बुलाया जो मेरे को पता था ये करेगा। मैंने मेन्यू बना लिया, विद इन अबाउट 5 hours आई गॉट द मेन्यू डन, ट्रायल डन, फूड ट्रायल एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर। पर यही नहीं है, मेन्यू नहीं है जी, आपके अलावा, इसके अलावा आपको किचन बनानी है। तो जो कंपनी कहती है हम आपको जी 1000 स्क्वायर फुट का किचन दे देंगे। मैंने कहा सर देखिए 12,000 स्क्वायर फुट का हॉल है, लॉन है मेरा, आप मेरे को 1000 स्क्वायर फुट, मेरे को कम से कम 3000 स्क्वायर फुट चाहिए। अच्छा, मैंने जबरदस्ती लिया और उसके हिसाब से मैंने किचन बनाई, उसके हिसाब से मैंने एज अ बैंक्वेट मैनेजर फ्रॉम वीपी लेवल आई बिकेम बैंक्वेट मैनेजर एंड आई हैंडल दैट इवेंट सक्सेसफुली। बट उसमें मैं आपको बताऊंगा तो बहुत चीजें हैं जो करनी पड़ी, जिस वजह से नहीं तो ये इवेंट हमारा हो तो जाता लेकिन पूरी तसल्ली नहीं होती। सो ऐसे करके देयर आर मेनी इंसिडेंट्स वेयर आई वुड से tact is very important, politeness is very important, humility is very important, peace of mind, cool, keep your cool. लोग मेरे को कहते हैं सर आप इतनी सिचुएशन में आप इतने कूल कैसे रहते हो। मैंने कहा अगर if I start shouting and losing my cool, then you guys will be in trouble. गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, प्रेशर सिचुएशन होती है, ऑक्यूपेंसी हाई है, 100% है। ब्रेकफास्ट में आप मानेंगे मैं 8 बजे ब्रेकफास्ट के लिए खड़ा होता था सुबह, when the guests are eating breakfast. That's not my job, but I would do it to ensure that people are getting food in time and table in time. So those are some of the things that really helped me a lot. सर एक और मैं पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा, was there any guest or personality you met during your tenure who left a lasting impression on you? So please डिटेल में बताइए क्या वाक्या क्या था and how that shaped, that impacted. Many people. Okay, now जैसे होटल्स होते हैं उसमें प्रोफाइल होता है अच्छे गेस्ट का। एक क्रिकेटर है, मैं क्रिकेटर हूँ तो मेरे को बड़ा अच्छा मौका मिला काफी क्रिकेटर से मिलने का, और जिनसे मैंने बैट्स पे ऑटोग्राफ करवाया, फारूक इंजीनियर, कपिल देव, सिद्धू जी, इन सब से मैंने ऑटोग्राफ कराए, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सबके साइंड बैट्स पड़े मेरे पास। तो ये सब बड़े इंटरेस्टिंग थे। कपिल देव तो है, ही इज अ ग्रेट
क्रिकेटर एंड तो कहता है अभी भी खेल रहे हो तुम, बड़े कमाल है यार। मैंने कहा हाँ सर अभी भी खेल रहा हूँ। तो एनीवे सो ये इन सब का बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा इंटरेक्शन रहा। इसके अलावा एक क्रिकेट अंपायर है, वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, आईसीसी क्रिकेट अंपायर ऑफ द ईयर रह चुके हैं 2 बारी, साइमन टॉफल। साइमन टॉफल एक मेरे को बड़े इंटरेस्टिंग, बिकॉज मेरी दोस्ती हो गई उससे, मेरे पास रहा तो उसने मेरे को बहुत चीजें बताई। कहता है मैं तो खुद क्रिकेटर था बट बिकॉज ऑफ इंजरी मेरे को छोड़ के मेरे को अंपायर बनना पड़ा, बट वो बन गया ट्रेनर। तो उसने ऐसी ऐसी चीजें मेरे को बताई कि आप जब मीटिंग करते हो तो क्या करते हो, तो मैं बताया, कहता है अच्छा ऐसे करो उसको। तो उसने मेरे को टिप्स दिए मीटिंग्स में और क्या लोगों को चैलेंजेस देने हैं और कैसे लोगों को इन्वॉल्व करके चलना है। तो एक तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। इसके अलावा आपने रिचर्ड गेयर का नाम सुना होगा, हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गेयर। तो वो ठहरे थे एक दिन मेरे पास, तो मेरे को भाई उसको तो मैं मिलना ही चाहूंगा, यू नो ही इज अ हॉलीवुड स्टार। सो मेरे को जो ट्रेवल एजेंट था उसने बोला यार ये इससे दूर रहना, ये बड़ा गुस्से वाला आदमी है। अगर ठीक है यार, गुस्से क्या कर लेगा। तो आई मेट हिम व्हाइल ही वाज हैविंग डिनर। वो मेरे को दूर से बोला नो नो एवरीथिंग इज ओके एवरीथिंग। मैंने अपना कार्ड दे दिया और मैंने फ्रंट ऑफिस को बोल के रखा था कि जैसे ही चेकआउट होने लगा 10 मिनट पहले बता देना। तो मैं गया, चेकआउट होने के टाइम उसको थैंक यू तो करना है, ये रिचर्ड गेयर है यार, यू नो ही इज लाइक अ वेरी वेरी फेमस स्टार। तो जब मिला मैंने उसको, दूर खड़ा रहा, मैंने कुछ नहीं बोला और खुद उसने साइन किया, अपना जो भी पेमेंट करा, कार्ड दिया, मेरे तरफ आया, स्माइल किया और बोला यू वांट अ फोटोग्राफ विद मी। तो मैंने कहा यू सेड इट सर, आई डेफिनेटली वांट अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ तो अलग बात है, फोटोग्राफ। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और फोटो ली। तो ये था मंसूर अली खान पटौड़ी। एज अ चाइल्ड, एज अ यंग स्कूल किड, तो गॉड ऑफ क्रिकेट तो वही थे हमारे। राइट, हाँ उस टाइम पे, राइट। मेरी किस्मत की बात है, मैं एक फ्रेंड के घर पे डिनर पे था, उसमें वो आए हुए थे वाओ। जब मैं ऑलरेडी सीनियर लेवल पे आ गया था। तो 30 साल 40 साल के बाद मिले मुझे और मैंने जो उनको आधा घंटा उनसे क्रिकेट की बात करी, मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच, यू मेड माय डे। उसके बाद मेरे गेस्ट बन गए, उनकी वाइफ शर्मिला टैगोर जी आती थी, अभी भी फ्रेंड है, जान पहचान है मेरी बड़ी अच्छी। तो वो जो उनकी पर्सनैलिटी थी वो मेरे को बहुत टच कर गई। इसके अलावा आई वुड से बॉलीवुड में जो काफी मेरे दोस्त बन गए, सबसे पहले ऋषि कपूर थे, गॉड ब्लेस हिज सोल। वो मेरे भाई जैसे, लिटरली मेरे साथ वो बैठते थे, ड्रिंक ड्रिंक पिलाओ यार जल्दी से, या खाना मेरे को बोलते थे यार ऐसा खाना खिलवा दे आज, और बड़े अच्छे दिल के। उसके बाद उनका बेटा रणबीर भी आता था मेरे पास, तो एक टाइम उन्होंने मेरे लिए कहता क्या भेजू बॉम्बे से, मैंने कहा बताओ, कहता मैं आम भेज रहा हूँ। तो अल्फोंसो का आम वो रणबीर कपूर मेरे लिए लेके आए, एक क्रेट लेके आए। उसके अलावा अक्षय कुमार, बड़े अच्छे दोस्त मेरे आज भी हैं और मैं उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, बिकॉज फिजिकल फिटनेस, वो कहते हैं अपने आप बॉडी को 1 घंटा दो, रोज 1 घंटा चाहिए, और वो करते थे, यू नो। एंड वो लेट सोना नहीं, लेट, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, ड्रिंक नहीं करते, सिंपल आदमी है। और एक अनुपम खेर, अनुपम मेरे ब्रदर जैसे हैं, मेरे ही स्टेट से हैं, तो उनसे बहुत सीखा मैंने। तो मेरा इंडस्ट्री से बहुत कनेक्शन रहा, which encouraged me to do a few, you know, things on screen. We can talk about that as you feel. But definitely ये कुछ लोग हैं, और भी हैं, बहुत सारे हैं, स्टार्स हैं, बहुत सेलिब्रिटीज हैं। I have had the pleasure of meeting Mr. Ratan Tata. Oh, great, great. I welcomed him and आप देखिए क्या सीखते हैं लोगों से। मैंने उनको वेलकम किया, उनको I walked with him to the ballroom where there was a party he had come to attend. Went back, I escorted him out, and 2 days later I get a personalized letter from Mr. Ratan Tata. Great, great. अब बताइए, रतन टाटा, चेयरमैन ऑफ टाटा, वो मेरे को चिट्ठी लिख रहे हैं कि डियर मिस्टर वांशु, आई वाज डिलाइटेड टू मीट यू। ये सीखने वाली बात है, ठीक है। उसके अलावा आई हैव मेट, received Dr. APJ Abdul Kalam. Wow. When he was not president. So he looked at me and smiled at me. And he says, you are the king of this kingdom. So I said, thank you very much, sir. But for me, you are the king. Right. और वो आदमी उस एज में चल के पैदल गया, you know, सीढ़ियों के चढ़ के। I don't want the lift, I'll walk up. इसके अलावा डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, I have welcomed, I have met him. So they are personalities. Dr. Karan Singh, what a man, what a personality, you know. There are many more. I can keep on talking, you know. So from each person, you definitely learn something. Right.
सर मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा, a personal one about future legacy. So given the current changes in tourism and hospitality, how do you foresee the next decade? क्योंकि 2020 के बाद, कोविड के बाद मैं बोलूँ, काफी चेंजेस हो गए, जैसा आपने भी कहा, क्लाउड किचन्स हो गए, एंड नाउ और टफ हो रहा है, चैलेंजेस है, कंपटीशन है. सो वो क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या क्या चेंजेस आप देखना चाहेंगे? एक आपने भी जिक्र किया कि जो है रोबोट्स आर क्रिएटिंग फूड एंड cuisines. So sir, keeping all that thing in mind. In terms of overall, I think the technology, like I said, AI is the big thing which is coming in, and AI will help in a big way to monitor a guests history and preferences and likes and dislikes. AI can help you to create a lot of packages in revenue management. Okay, in guest interaction, things which were done manually. Of course, already it's happening. It's not that it's not happening. Everything. आप अब छोड़िए इसको, पीछे चलिए आप. 93-94 में कंप्यूटर्स कहाँ थे लोगों के पास? वो डब्बा वाला कंप्यूटर आया फिर, राइट, है ना? फिर हमें किसी ने बोला, अरे दुबई में तो यार हर मैनेजर की टेबल पे एक कंप्यूटर होता है. हम इमेजिन नहीं कर पाते थे. ईमेल्स क्या है, किसी को पता थी क्या ईमेल क्या होती है? राइट, Already that culture. Yeah, that had already started, but it was new for us, right? Then came mobiles in 96, 95. तो mobiles आए, तो वो भी limited थे लोगों के पास. तो these things have already started changing, and the whole billing in the industry has changed. Whole check-in technology has changed. पहले आपको physical चाबी मिला करती थी, फिर आपको key cards मिला करते हैं. तो उससे क्या, उसका एक नुकसान भी था कि every time a guest goes to the counter, लोगों से मिलता है. अब तो यार जेब में चाबी रखिए, बाहर जाओ, वापस आओ, सीधा कमरे में जाओ. अब नेक्स्ट लेवल आ गया है कि आपको फोन पे आपका सब कुछ मिल रहा है. आपको स्कैन करा, आपका फेस आईडी, आपको काउंटर पे जाना ही नहीं है. राइट, आपका सीधा चेक इन हो गया. आप जाओ जी, पूरा कमरे में सीधा जाओ, अपना फोन लॉक को दिखाओ और अपना लॉक खुल गया, आप अंदर चले गए. रूम में आपके लॉट ऑफ होटल्स हैव आईपैड्स के एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड ऑन द आईपैड. यू डू योर रूम सर्विस ऑर्डर ऑन द आईपैड. आप आईपैड पे जाके ऑर्डर डालो, आपने किसी से बात ही नहीं करी, आपका खाना आ गया. वेरेज अगर आप पुराने टाइम से फोन करेंगे तो आपको गेस्ट किसी से बात करने का मिलेगा. तो ये लेस पर्सनलाइजेशन आई कैन सी हैपनिंग in the industry in a big way, and that is not very good also, but then technology is going to continue growing. So I think a lot of changes, a lot of more technical stuff will happen, but less personalization is what I feel, which is a little bit of a concern. And also, one big issue in the industry is today people are moving out of hotels in a big way. They're getting a lot of offers. It's not that there are so many people available. There are so many colleges, hotel schools. People are coming out, but people also getting options in other industries. So that will continue to happen in a big way. And hotels are not easy to run, and to work in hotels. So those changes will happen. More and more hotel students, school students are coming into the thing. A lot of more expansion is happening in a big way. In India, more and more international chains will keep coming in, although India already has so many. So the hotel industry is definitely set for a big, big growth in the future. Sir, taking next question about your book and about the writing. Do you have any plans to write more books in future? And what would be the topic you would love to write in detail, in depth? So please just light us about the plans. That's something I've kept it as a secret. Oh. देखिए, I'm not a writer, okay, so I can't write like a Frederick Forsyth or Ken Follett. But so उसके लिए बहुत एक imagination चाहिए. मैं थोड़ा factual लिखने में believe करता हूँ. Yes, I have a thought in mind to. I have a lot of friends in the industry, seniors who are 10 years my senior. I have made a list of those people, and I will be writing a book hopefully on those, I would say, things of the past which are lost, which are not happening anymore, by interviewing such people, putting my thoughts. So that will be something very interesting to share with people. Right. आज से 40 साल पहले क्या क्या, जैसे हमने शुरू में किया था कि क्या चेंजेस आए हैं. आप मानेंगे, मैं एक होटल में करता था, तो वहां पे उस टाइम देयर वाज नो कंप्यूटर्स, राइट? तो जैसे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, तो उनके वहाँ कैशियर होते थे. हर रेस्टोरेंट का एक कैशियर होता था.
तो वो फिजिकली उसको सारे बिल्स अपनी शिफ्ट के भेजने नहीं पड़ते थे कि आप जाए वहां पे छोड़ के आए। वहां न्यूमेटिक ट्यूब्स होती थी उनके किचन, उनके कैबिन के पीछे, और वो ट्यूब सीधा फिजिकली सक्शन ट्यूब। ट्रैवल ऑल अलोंग द होटल टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सो वो एक कैप्सूल में सारे बिल्स डालता था, उसके अंदर रखता था और उसका बटन दबाता था, तो बाय न्यूमेटिक दिस थिंग इट विल गो बाय द वैक्यूम, इट विल पुल इट सक्शन से, वो सीधा जाके जाता था। अब आप इमेजिन करिए ऐसा आज के टाइम पे फिजिकली बड़ा मुश्किल है। या डिपार्टमेंट्स के अंदर हर मैनेजर के डिपार्टमेंट ऑफिस में घड़ी होती थी, राइट, होती है सेम घड़ी इन एवरीवेयर। तो एक दिन देखा मैंने कहा वो घड़ी चल रही है, टाइम एडजस्ट हो रहा है। मैं कहा ये क्या हो गया यार, ये तो घड़ी अपने आप कहाँ से चल रही है? तो मेरे को बताया, तेरे को शेफ ने बताया कि तेरे को पता नहीं है, सारी घड़ियां एक सेंट्रल घड़ी से कनेक्टेड है, एक सेंट्रल मशीन से, जो टाइम एग्जैक्टली सबका सेम रहेगा। तो मेरी ये चीज सोचने वाली है कि ऐसा भी होता था। So, those things were there, and that's some of the things I would like to definitely compile in a book form. Great sir. बहुत सारे विशेष एंड बहुत जल्दी आपकी दूसरी बुक्स भी आए, और डेफिनेटली पीपल वुड लव टू रीड दैट एक्सपीरियंस। और जैसे आपने 2 एक्सपीरियंस आपने शेयर करे, यस इट इज पर्सनल देखा है, तो इसलिए समझ में आता है कि हाँ, वो एक पहली बार जब देखते हैं तो इट इज जस्ट स्पीचलेस, समझ में नहीं आता अच्छा ऐसा होता है। तो that was really great. Just to intervene, there are so many incidents which I have written in the book which have created a experience for a customer. Fantastic experience that they will never forget, and many I have done myself. I have taken initiatives. I'll not share. Book पढ़िए, आपको मिलेंगे उसमें। Great sir. Sir, book और रीडर्स की जरा मैं बात करूं, उनसे रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहूंगा। What core message do you want to convey to all the readers through your book? This is for those who are getting into the industry. That once you are getting into the industry, immerse yourself fully, 100%. आप सब भूल जाओ, आपको बस अपने आप को उसमें ढालना है, like a actor would go into a character of a role, कि वो उसके अंदर वो ढल जाता है। तो I think very important that, और ये भी याद रखिए कि हमारा जो मेन एम है at the end of the day is 100% guest satisfaction, जो एक बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। आपके होटल में 400 लोग रह रहे हैं, सबको खुश करना बड़ा मुश्किल है। गलती आएंगी, गलती होंगी। सो आइडिया शुड बी दैट जब गेस्ट दरवाजों से बाहर जाता है ना चेकआउट करके, तो वो खुश जाए, उसके दिमाग में नेगेटिविटी ना रहे। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है एट द एंड ऑफ द डे। कैसे करना है वो सब, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने खुद किया, और मैं खुद खड़े होके गेस्ट को मिलता था, जाते समय भी मिलता था, आते समय भी कोशिश करता था कि जितनों से मिल पाऊं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी मस्ट ऑल्सो एक्सेप्ट के गलतियां हो सकती हैं। एक मेरे बॉस बताते थे मेरे को, ही वुड पुट हिज आर्म अराउंड मी एंड से, "अभी विजय, हाउ इज एवरीथिंग?" So my answer would be, everything is all right. He says, no, if everything is all right, then there is something wrong somewhere. Very true. आप सोचिए इस बात को, if everything is all right, then there is something wrong somewhere. Right. Because everything cannot be all right. Right. In a hotel, you can say, क्यों नहीं भैया, बेस्ट होटल है। कोई GM नहीं आज की डेट में कह सकता कि मेरे होटल में कंप्लेंट नहीं हुई है। बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है। So these are the things I would tell people, and also read books. I mean, today people don't read books, because क्या है, सब कुछ तो फोन में। और ऊपर से अब चैट GPT आ गया, तो क्या नॉलेज कहाँ से आएगी? हाँ, उसे चैट GPT में क्वेश्चन डालो, सब कुछ आ गया। राइट। बट जो इमोशन नहीं आएगा उसमें, बुक की जो फीलिंग आएगी, बुक्स पढ़नी चाहिए। अच्छी बुक्स है मेरे पास, मेरे सब्जेक्ट की 10 बुक्स पढ़ी है मेरे पास, जो मेरे अंदर पढ़ी है, मेरे को पढ़ना चाहिए, पढ़ता था मैं। बट दीज आर द बाइबल्स ऑफ आवर करियर, ऑफ आवर इंडस्ट्री। वन मस्ट रीड एंड नॉट टू फॉरगेट द बेसिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट दैट बेसिक जो है ना, बेसिक्स, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू say, ठीक है, I want to learn 100 things, but उसका पहले ABC पढ़िए। because I'll give you an example, एक हमारी क्लासिकल डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न कुजीन है, तो मैंने सोचा यार इसमें पोटैटो डिशेस कितनी है कॉन्टिनेंटल फूड में, 225। Oh my God. तो मैंने साइड पे रखा, मैंने कहा लेट मी स्टार्ट काउंटिंग व्हाट ऑल आई नो। मेरे को 20 आती है। I know 10% of what is in the book. But there's so much to learn. Right. So बेसिक्स को इग्नोर नहीं करना, सबसे पहले बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, आप तभी आगे बढ़ेंगे। एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर, बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरीके से बताया, एंड स्पेसिफिकली यू हैव गिवन एन एडवाइस टू द यूथ एंट्रिंग इनटू द ग्लैमरस, यस,
yet demanding industry. और जो आपने टिप्स पॉइंटर्स दिए ये सबको ध्यान में रखने चाहिए. एंड यस आजकल तो बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स भी हैं उसमें. सो मूविंग फर्दर सर एक और मैं पर्सनल सवाल मैं पूछना चाहूंगा, पर्सनल फिलोसॉफी के बारे में पूछना चाहूंगा. व्हाट डज ट्रू हॉस्पिटैलिटी मीन्स टू यू? इट इज अबाउट लग्जरी एमिनिटीज और ह्यूमन टच, जैसा आपने सर पहले भी बताया. इसके बारे में सर प्लीज और डिटेल में बताइए. देखिए, a hotel is a hotel, right? Product, beautiful product, best rooms, best chandeliers, best carpets, best food, best services. Maybe not services. Sometimes, that's the point I'm coming to. That it may be best in every way in terms of you got the best televisions, you got the best spa, the best business center, but your services are not good because the people have a big attitude and they don't give the focus to a customer the way it should be given. So I think it's all about the human part of it. Without the human part of it, things don't work. And again, I'll come to a point of basics that there are my own philosophy is about 7 golden rules. अब आप बोलेंगे क्या है? अब मैं आपको सिंपल बता देता हूँ. आप कितने गेस्टों को हम मिलते हैं अपने डे में, मैं मिलता हूँ तो मैं सबको बोलता हूँ कि यार गेस्ट की आंखों में देखो. Look at the guest eyes. It'll give him confidence. Right. Smile from 10 feet away, start smiling. Right. Call him by name. How many people call guest का नाम भी पता है तो बोलते नहीं है. But मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था मेक्सिको में, बहुत ही बढ़िया क्या वहां पे वो जो लड़का था जो हमारा एरिया कॉन्सियर्ज था, वो जब भी मेरे को मिले 4 बारी मेरा नाम ले. How are you, Mr. Vanchu? Anything else I can get for you, Mr. Vanchu? तो मैं कहता हूँ लोगों का नाम लो, बिकॉज नाम जो है ना एक ईगो होती है. तो गेस्ट का नाम नहीं लेते लोग, डरते हैं. अब आप आज के टेक्नोलॉजी में फोन में आपका नाम आ जाता है गेस्ट का. तो जब मेरी इंस्ट्रक्शन होती थी रूम सर्विस को कि भाई आपका आ रहा है मिस्टर माइकल इज ऑन द लाइन, सो यू पिक अप द फोन एंड से मॉर्निंग मिस्टर माइकल, दिस इज नेहा फ्रॉम द रूम सर्विस, हाउ कैन आई हेल्प यू? स्ट्रेट अवे गेस्ट, अरे मेरा नाम ले लिया. राइट, इफेक्ट. अच्छा, खाना चला गया, आधे घंटे बाद आप फोन करें, मिस्टर माइकल आई होप द फूड वाज गुड, कॉलिंग गेस्ट बाय नेम. फिर क्या होता है वेरी ऑफन, ये कुछ चीजें बता रहा हूँ, 7 गोल्डन रूल्स का पार्ट है, और भी है. अब जैसे कोई आप लॉबी में खड़े हैं, मेरे एक ये रूल है और मैं बहुत ज्यादा इसको फॉलो करता था, करवाता था. कोई गेस्ट आपके पास आता है, बोलता है वेयर इज द स्विमिंग पूल. अब नॉर्मल ह्यूमन क्या बोलेगा? सर यू गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट. No, you have to walk to some, if you can walk to the whole distance, great. Otherwise, walk half the distance and they say, sir, just ahead of the corridor. Point नहीं करना, ये उंगली नहीं दिखाना सर, ये नहीं, ये बहुत ही खतरनाक चीज है, because it sounds very bad. और अगर आपको दिखाना भी है, आप बिजी हैं, तो बोले ऐसे करके हाथ से, sir this way please, not like this way, finger pointing, not done. So things like these, and smile in your voice. टेलीफोन पे आप मानेंगे नहीं, लोग बोलते थे आप क्या कह रहे हो सर. रूम सर्विस में रिजर्वेशंस पे जो फोन के काम होते हैं, मैं उनको बोलता था जब भी गेस्ट का फोन आए आप स्माइल करो. क्यों सर, क्यों जर, वो तो दिखता नहीं मुझे, या वो मेरे को नहीं देख सकता. योर स्माइल विल कम इन योर वॉइस. Definitely, right. That warmth will come only then. Right. So that is very important. So these are some golden rules which I would say people must learn, because that's where the human element comes in. जो human touch उसी से आता है, not by technology, so अच्छा, also knowing guests likes and dislikes. आपके पास regular guest आते हैं तो आपके पास history होती है. जो रिटर्न गेस्ट होता है, रिपीट गेस्ट होता है, हम मीटिंग में डिस्कस करते हैं कि यार मिस्टर खन्ना आ रहे हैं, यार उनको ये वाली सोप नहीं पसंद है, यार उनको कुछ और दे दो, या उनको ये फ्रूट पसंद है, उनके कमरे में फ्रूट डाल दो. हिस्ट्री. रेस्टोरेंट में आते हैं तो रेस्टोरेंट स्टाफ को पता होता है जनरली कि ये रेगुलर गेस्ट है, इसको ये नहीं अच्छा लगता. तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. गेस्ट एंटिसिपेटिंग व्हाट अ गेस्ट नीड, और going beyond his expectation, exceeding his expectation. These are very, very important things, which also I've written in my book. Okay. Moving to the next question. Yes, it is common, but yes, हर एक का आंसर and technicality अलग-अलग रहती है. After years of high pressure work, how were you able to balance your personal peace with your professional demands? क्योंकि ये बैलेंस करना it is not an easy task. But sir, आपने वो कैसे किया? वो क्या situations कैसे आप करते हैं? What is that your trick आपकी जो कौन सी है? वो प्लीज बताइए. देखिए, like I said, हर चीज के लिए आपको टाइम नहीं मिल सकता है.
अब जैसे कोई गोल्फ खेलता है तो उसको गोल्फ के लिए 6 घंटे चाहिए, राइट? मेरा बचपन से एक पैशन है जो मैंने एज अ 10-year-old आई टू सी माय अंकल्स, यू नो, आई नेवर सॉ देम प्ले बट आई यूज्ड टू हियर के वो खेलते थे, दिल्ली स्टेट चैंपियन थे। एक गेम है बिलियर्ड स्नूकर, आप जानते होंगे। आजकल पूल हो गया, पूल तो बच्चों वाली गेम है यार, वो मेरे को नहीं पसंद है, छोटी टेबल है, मैं 12x6 की टेबल पे खेलता हूँ, बड़ी वाली टेबल। तो बिलियर्ड्स एक गेम है जो मैंने बचपन में सुना और 16-17 साल की उम्र में मैंने सीखा पहली बारी, और वो है, उसके बाद गैप आ गया, फिर अराउंड 84 से फिर शुरू किया मैंने। और वो दिन और आज का दिन, मैं हर संडे आपको एक जगह मिलूंगा, चाहे आंधी तूफान आ रहा है, मैं फैमिली को पता है कोई लंच मत रखो उस दिन के लिए, होता है तो उसमें जाना पड़ता है, बट 99% मैं वहां पे आपको मिलता हूँ अपने दोस्तों के साथ, मैं बिलियर्ड्स खेलता हूँ। और जब मेरे को कोई बहुत ज्यादा थकान होती है और मेरे को लगता है यार ये बहुत हो गया, चलो यार लेट्स गो टू द क्लब एंड प्ले, तो मैं वहां जाके खेलता हूँ। वो गेम मेरे को बिल्कुल एक मेडिसिन जैसे हो जाती है, क्योंकि वो बड़ी क्लासिक गेम है एक। और आपको पता है बिलियर्ड्स वाज इन्वेंटेड इन इंडिया। यस, इन कोई कहता है जबलपुर, कोई कहता है ऊटी, बट इट वाज इन्वेंटेड इन इंडिया। ओके, देन इट वेंट टू यूके एंड वहां पे स्नूकर बन गया, वो जो मल्टीपल बॉल से खेलते हैं। बिलियर्ड में 3 बॉलें होती हैं, तो बड़ी टेक्निकल गेम है। तो ये करता हूँ ये, और इससे मेरे को बहुत सुकून मिलता है। और ऑफ कोर्स आई लिसन टू म्यूजिक व्हेन आई एम टायर्ड, आई लव हिंदी म्यूजिक, आई लव इंग्लिश, बट आई लव ओल्ड क्लासिक्स। अब आप मानेंगे, मैं केएल सहगल बहुत एंजॉय करता हूँ। आजकल बच्चे बोले कौन है सहगल साहब, या सीएच आत्मा हो गया, यू नो, आई लव जिम रीव्स, यू नो, द ओल्ड इंग्लिश। मेरे को 50s-60s का म्यूजिक से बहुत है लगाओ, बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर बहुत पसंद करते थे केएल सहगल और सीएच आत्मा और पंकज मलिक, ये सिंगर्स को, तो मेरे को तब से बहुत पैशन था। एंड इसके अलावा ऑफ कोर्स यू नो वी टॉक्ड अबाउट हॉलीवुड एंड बॉलीवुड, तो थोड़ा बहुत उसमें भी पैशन रहा मेरा। तो वो थोड़ा एज अ हॉबी कर लेता हूँ, मॉडलिंग वगैरह थोड़ी बहुत। So talking more about this, टीम का ये सवाल है that we believe that you have done some acting और इसमें भी आपका इंटरेस्ट रहा है, and you have done that, an active part आपने लिया है, and you must have enjoyed, you have excelled to that also. तो ये आपको किसने बताया? सर टीम है और ये है, आपने पहले भी जिक्र किया था, तो डेफिनेटली सर ये हिडन टैलेंट और इसके बारे में प्लीज सर डिटेल में बताइए, क्या शूटिंग से लेकर किन मूवीज सीरियल्स में आपने काम किया, क्या रोल थे, व्हाट वाज द चैलेंज, एंड वो सर एक और रहता है कि एक अपना प्रोफेशनल है, वेल एस्टेब्लिश्ड, सेटल्ड, एंड उसके साथ एक नए एक्सप्लोर करना, उसको एंजॉय करना, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सर इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। देखिए, मैं आपको फिर 50 साल पीछे ले जाता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो अंदर से एक था, यार मेरे को मूवीज में एक्ट करना है। अब आप बोलेंगे कि क्या ये क्या बात हो गई भाई, मूवीज कहाँ से आ गई? तो था, लेकिन उस टाइम कॉन्फिडेंस नहीं था, एक्सपोजर नहीं था, तो फैमिली को पता चला, गुस्सा कर दिया, चाहे बैठो घर पे, कोई नहीं करना है, कौन जाता है बॉलीवुड। तब से मेरे अंदर एक डिजायर था करने का, और ये डिजायर अंदर रहा मेरे। एंड फिर करीब 2010-11 में जाके मेरे को थोड़ा मॉडलिंग का चांस मिला, तो मैंने मॉडलिंग करी, यू नो, थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स के लिए करता रहा अपने प्राइवेट टाइम में। ये नहीं है कि मैं अपने ड्यूटी छोड़ के जाता हूँ। और फिर किसी ने बोला यार तुम मूवीज में करो, मैंने कहा यार कभी सोचा नहीं, तो ऑडिशन करवाते हैं, तो ऑडिशन कराया, तो ऐसे करते करते 3-4 छोटे छोटे मैंने रोल्स करे मूवीज में। और ये नहीं है कि बड़े रोल, बट छोटे छोटे, सो यू नो विच गिव मी अ लॉट ऑफ लर्निंग। अभी पीछे एक मूवी आई थी सेक्टर 36 नेटफ्लिक्स पे, इट वाज अबाउट दैट सम मर्डर केस एंड ऑल। तो उसमें मेरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीन ये है कि मैं अकेला, मेरे को बोला कि आप एक सीन में एक्ट करोगे, ये डायलॉग है, पूरा रट के आओ। तो मैंने रट लिया, और मेरे को सिलेक्ट नहीं किया था शुरू में जो बंदा ऑडिशन करता है। मैंने कहा यार भेज दो यार, हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ो। तो डायरेक्टर को पसंद आया, उसने मेरे को बुलाया। अब जब मैं जब एक्चुअली किया तो मैं एक जगह खड़े होके फोन पे बात कर रहा हूँ, लेकिन जब एक्चुअल सीन था, आप मानेंगे 30-40 लोग खड़े, सारे जो टेक्नीशियंस होते हैं, और मैं अकेला स्क्रीन में। और मेरा तो डायलॉग भूल गया मैं, आई फॉरगॉट द डायलॉग। तो कहते हैं बिकॉज यू हैव टू वॉक अप एंड डाउन। तो कुछ सीन्स में आपको शेयर करूंगा, तो आई हैव टू वॉक। तो फिर मैंने किया, डायरेक्टर कहता आप डोंट वरी, टेक योर टाइम, बट मैंने कहा नहीं आई एम रेडी। तो फिर मैंने एक ही सिंगल डायलॉग में
5-6 टेक्स हुए, लेकिन उसको मैंने एक में फाइनल कंप्लीट किया उसको। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि अगर आप अकेले स्क्रीन में आ गए तो उसको डरता है ना, वी आर नॉट स्टार, वी आर नॉट एक्टर्स ऑफ दैट लेवल. But yes, that's my passion, and I've done 2-3 small movies, small appearance in a movie called Fitur, and then there was a movie called Guilty on Netflix, which I've done a lawyer's role. तो ऐसे कुछ 2-3 मेरे इंसिडेंट्स रहे. एक मैंने रोल किया था दूरदर्शन पे, बड़ा पुराना एक सीरियल था पश्मीना की शॉल. यस, सुना है. राइट. हाँ, तो I did that in which I was playing the lead role. Wow, great. many years back. तो वो उर्दू में था. तो मेरे ग्रैंडफादर उर्दू के पोएट थे. तो उर्दू हम घर में जब खालिश उर्दू तो नहीं, पर काफी अच्छी उर्दू बोल लेते हैं. वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है तो वो अच्छी तरह कर लेता था मैं. तो डायरेक्टर को बड़ा पसंद आया. अब जैसे एक वर्ड है मशरिक और मगरिब, अब मैंने पहली बार ही सुना था ईस्ट एंड वेस्ट. तो आप बोलिए, बड़ा क्लियर बोला आपने. तो मेरे फ्रेंड है राजकुमार संतोषी जो डायरेक्टर है, कहते हैं विजय तुम्हारी जो उर्दू है ना, डिक्शन है बहुत बढ़िया है, बहुत कम लोगों में है. तो मेरे को एक डायरेक्टर ने बोला यार तुम दिल्ली में क्या करो, बॉम्बे आओ, मैं आपको स्टार बना दूंगा. तो वो पैशन है एक इनर, आई still feel I can do something and I just have fun, I enjoy it and that gives me a lot of satisfaction. Oh, great sir. बहुत ही अच्छा लगा and thanks for accepting our request. और आपने आपके hidden talent के बारे में बताया और वाकया बताया. That was really good. Moving toward the end of the podcast, मैं एक दो और सवाल पूछना चाहूंगा, a personal one. Sir, how would you like your legacy to be remembered? बहुत टफ सवाल है, डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि पूरा सब उसको निचोड़ रखना. बेसिकली देखिए, जहां तक लेगेसी का सवाल है, लेगेसी आई एम नॉट दैट ग्रेट होटेलियर. देयर आर मेनी ग्रेट होटेलियर्स हु हैव लेफ्ट देयर लेगेसी. मिस्टर ओबरॉय ऑफ ओबरॉय होटल, राय बहादुर ओबरॉय ऑफ ओनर ऑफ ओबरॉय होटल्स, रतन टाटा जी एंड वेरियस ओनर्स ऑफ वेरियस होटल्स एंड हु बीन स्टॉलवर्ड्स. हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे. बट यस, if I would like to be remembered as a definitely as a very honest and a passionate hotelier with total focus on developing people, giving a chance to people to grow and to ensure that we work with as much honesty as we can in the industry, I think, and with the sole aim of ensuring 100% guest satisfaction. That's something I believe that I have done to create those magical moments for our customers. And so I would say for होटेलियर्स, चाहे आप फ्रंट ऑफिस के हो या F&B के हो या हाउसकीपिंग के हो, आपका मेन पैशन ये कि गेस्ट को मैंने कुछ करना है अलग से. सो बेसिकली टू बी रिमेम्बर्ड एज एन ऑनेस्ट, सिंसियर होटेलियर विद अ सिंपल, क्लीन हार्ट. एंड आई एम लाइक वाटर, यू कैन पुट मी एनी glass bottle and I'll take that shape. And I feel I'm very crystal clear and I'm very sincere and passionate about what I do. And तो आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे इंडस्ट्री में. जो लोग नहीं मेरे साथ मैच कर पाए हैं काफी लोग, तो सैड है कि वो मेरी भाषा नहीं समझ पाए, कई हैं, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा. And those are all your learnings and you want to pass that on to the generations. Great sir. मैं एक बार योगीराम के सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, आज हम बात कर रहे थे विजय वांचू जी से, लेजेंडरी होटेलियर एंड ऑथर. सर ने बहुत सारे वाकया, किस्से, एक्सपीरियंस, टिप्स, ट्रिक्स बताए. सर मैं इस पॉडकास्ट का एंड करना चाहूंगा विद ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन, या टफ वन, क्योंकि इतना सारा समेटना, yes, it is tough into one sentence. If you had to summarize your entire journey in one sentence, what would it be? That's tough. I would say an innings of fun, enlightenment. That is, you gain knowledge, lot of learning, lot of unlearning, growth and satisfaction. Great. Because if you're not satisfied with what you've done, then it's a wasted effort. So lot of fun, lot of learning, lot of enlightenment, growth, unlearning and then learning. I think that's what I would put it as. Great sir. सर बहुत अच्छा लगा. मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सारे व्यूअर्स को कि सर की जो बुक है एज एन जनरल रीडर भी जब मैं बात करूं, यू शुड गेट इनटू अमेज़न में आप जाइए, इसमें जाइए जहां अवेलेबल है, एंड यू मस्ट गिव इट अ थॉट कि क्या है. बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, किस्से मिलेंगे, बहुत सारे वाकया मिलेंगे, दैट वुड अमेज यू. एंड सर बहुत अच्छा लगा. योगीराम की सारी टीम की तरफ से, योगीराम के सारे व्यूअर्स की तरफ से
Sir, really it was a great experience, it was great learning and बहुत बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरीके से उसको layman's language में बोले या जिस तरीके से आपने उसको पिरोया, that was really great to have you and मैं चाहूंगा आपकी अगली बुक भी आए and I would be honored, Yogiram team would be honored to have you again and talked about the experience इतने सारे और नए नए वाक्य. Also, I must tell you that the current book that we are talking about, उसके मैंने 2-3 नाम सोचे हुए थे, एक भी मेरे को सूट नहीं कर रहा था. मतलब एक वो अंदर से क्लिक कर जाता है ना कि हाँ ये बढ़िया है. Right. So जैसे मूवीज हैं, कई नाम बड़े अच्छे होते हैं तो बहुत चल जाती हैं. Right. You know, so बहुत नाम थे, फिर फाइनली तो नाम दिया Checked In by Fate. Great. You check in a hotel. Right. And by fate, why? Because I was not wanting to be a hotelier. Okay, great. So it was fate that brought me into the industry. So I would say I checked in by fate. Great, sir. Great title. So सारे दर्शकों को टाइटल पता है, सारे दर्शकों को पता है बुक कहाँ से मिल सकते हैं. You can get it from Amazon, you can get it from other platforms also. And please आप देखिए, बुक पढ़िए, and please do comment how you feel, what you learn, and what was that experience जो सर ने बताया है, आपने उसको कैसे visualize किया. And definitely, sir, it was really great to have you once again from Yogiram team, Yogiram के सारे viewers की तरफ से thank you very much for your precious. Thank you very much. It was indeed a pleasure. I really enjoyed this. Sir, all credit goes to guests like you. All credit goes to the viewers, and all credit goes to the Yogiram team, sir. Thank you so much. Thank you, sir.